नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना में पुरानी रंजिश के चलते नेपाल के व्यक्ति को 2 दर्जन के करीब युवकों ने घेरा, तेजधार हथियारों से वार कर बेरहमी से की हत्या। हरियाणा के सिरसा में मामूली कहा-सुनी से शुरू हुआ विवाद बना हत्या की वजह, भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। जीरा में बेखौफ चोरों ने रात में 2 किराना दुकानों को बनाया निशाना, गले में रखी नकदी लेकर हुए रफू चक्कर। और अब हलचल विस्तार से। लुधियाना के हरगोबिंद नगर गली नंबर 4 में पुरानी रंजिश के चलते नेपाली युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान किशन थापा के तौर पर हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि किशन थापा की एक व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई, जिसके तुरंत बाद 15 से 20 युवकों ने आकर किशन थापा को तेजधार हथियारों से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने थाना डिवीजन नंबर 6 के समक्ष रोष प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। सर ਜਦੋਂ मैं आया ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਭਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲੰਮੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਾਂਤ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਗਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ? ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕੋਲੋਂ 20-25 ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, 4-5 ਬਾਈਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਰ ਸੁਣਨ ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਤੱਕ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਥਾਪਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸਨ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੇ 15 ਕੇ 20 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਦਾ? ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਘਟਨਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਾਤ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ मरा ही है। सिरसा के गांव राम नगरिया में एक मामूली कहा-सुनी के बाद चाचा भतीजे के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने तेजधार हथियार से चाचा पर हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल चाचा अजय कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना 25 जून की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगरिया स्थित भाटिया पशु डेयरी फार्म में कुछ लोग शराब पी रहे थे। तभी किसी बात को लेकर अजय कुमार और उनके भतीजे गुड्डू के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुड्डू ने गुस्से में आकर अजय कुमार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। गंभीरावस्था में अजय को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 5 जुलाई की देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जो अब जांच का अहम हिस्सा है। बाद में लड़ाई हुआ भाटिया डेयरी फार्म रामनगरिया सीसा। इसके रिश्ते में भतीजा लगता है। भतीजे ने चाचा को जमीन विवाद के कारण हत्या कर दिया। ये घटना 26 जून को 25 जून को 11:18 की घटना है। उसके बाद तुरंत हमें सिविल अस्पताल लाया गया। डेयरी मालिक ने गया वहाँ अपने गाड़ी में डाल के यहाँ लाया सिविल अस्पताल। उन्होंने यहाँ से सिविल अस्पताल वाले बठिंडा के लिए रेफर कर दिया गया, जो कि उनके भाई विनोद और प्रमोद दोनों साथ में थे। तो पर विनोद तो साथ में थे, लेकिन प्रमोद बोले कि हम आ रहे हैं, उसके बाद मेरा भैया को वहाँ ले जाइएगा बठिंडा। उन्होंने गाड़ी रोकवाया, 2 मिनट कृपया कीजिए कि रोक दीजिए। आने के बाद यहाँ स्थिति गंभीर इतनी थी कि खतरा था जान की। उसके बाद यहाँ से उनके साथ में सेठ जी आए, जहाँ काम करते थे प्रमोद। उन्होंने ले आके सिटी हेल्थ केयर सिरसा में भर्ती कर दिए रात में। वहाँ गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने बोला कि इसको हम नहीं इलाज कर सकते, तो वहाँ से रेफर कर दिया, जो कि हम दिल्ली स्पाइन हॉस्पिटल में ले गया डबवाली रोड पे। वहाँ पर इनका इलाज 10 दिन चला। 10 दिन इलाज चलने के बाद इतना गंभीर चोट था कि 5 जून को शाम 6 बजे इनका मृत्यु हो गई। और उन्होंने जिस टाइम घटना का अंजाम दिया, अपने घर पे चाचा और ताऊ के साथ बातचीत करके उन्होंने फ़ोन करते हुए इनके मारा। उधर से उसको उस्काया गया कि इसको जान से मार दो, जिंदा मत छोड़ो, इसके ज़मीन हड़प लेंगे। यही कारण है जी। कितनी जमीन इसके पास थी? इनके पास जी ज़मीन तो थोड़ा ही है, लेकिन इनके लड़के जो ऐसे कोई काम की नहीं है, जैसे दिमाग से कमज़ोर हैं। बोले इनके लड़के तो कुछ नहीं करेंगे, इसको मार देंगे, इसका ज़मीन जो है हम कर लेंगे कब्जा। इसके ज़मीन की लड़ाई 2017 से चल रहा है जी। मैं अजय यादव और विनोद यादव दोनों ही खा रहे थे, और गुड्डू भी खा रहा था। एक उसको भाई भी चाचा के राकेश यादव, हम लोग चारों खा रहे थे। उतना में उसको 11 सवा 11 हो रहा था, तो गुड्डू मुकेश दोनों नाम है, उसको घर से फ़ोन आ गया। जब वो फ़ोन आने लग गया तो फिर वो बतरस करने लग गया अजय जोरे। मैं बोला कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अपना लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इतना में दोनों अझूर गए। जब हम वहाँ 4-5 जने थे, हम लोग भी उसको छुड़ा के साइड में दोनों को किए। उसके बाद उठा, वो फौड़ा से मार दिया। घर से फ़ोन आ रहा था कि मार दो उसको, ज़मीन का हमारा 17 से विवाद चल रहा है कि इसके वाला ज़मीन हमारा हो जाएगा। और उसके भाई भी यहाँ पर है, यहाँ कालरा डेयरी में है, एक वहाँ पर लगा हुआ है, उसको भी नहीं अति किए हैं। हमने फ़ोन करे सरदार जी के, वो ले आ रहा था बठिंडा। हम कि 2 मिनट आप रोक लीजिए, हम आ रहे हैं तब ले जाइएगा। हमने देखे उनको गंभीर हालत है, हम सिटी से में भर्ती करवाए, खुद अपना पैसा देते। तो क्या हुआ था वाक्य पूरा? बाकी वो बेहोश थे, गंभीर स्थिति थी। तो एडमिट करवाया यहाँ पर? हाँ। कितने दिनों तक इलाज चला? इलाज 10 दिन तक चला। तो मारा क्यों उसको? हमारा घर का विवाद चल रहा था, 2017 से जमीन का विवाद चल रहा था। किससे मारा? उस फौड़ा के डंडा से लोहा उसमें लगा हुआ था, उससे मारा है। क्या चाहते हैं आप? करवाए, इसको होना चाहिए सजा। जीरा में चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसका ताज़ा मामला गत रात्रि जीरा के रेलवे रोड से सामने आया है, जहां चोरों की ओर से 2 किराने की दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए गले में पड़ी नकदी चोरी की गई। तो वहीं मामले संबंधी जानकारी देते हुए दुकानदारों ने बताया कि गत रात्रि करीब 3:20 से 3:30 बजे के दौरान 4 से 5 चोर वरना कार में सवार होकर आए और दुकान का शटर तोड़कर गले में पड़ी
नकदी निकालकर फरार हो गए। वहीं चोरी की ये सारी घटना दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुबह करीब 4 बजे पुलिस द्वारा जारी 100 नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। मनोज जैन साडी दुकान सीतादास कला चंदर जैन रेलवे रोड जीरा ते है ते रात तकरीबन 3:25 मिनट के लगभग सीसीटीवी कैमरे के हिसाब नाल ते 4-5 बंदे लग्जरी गड्डी उन्हां कोले करेटा दे विच आए अपना वरना गड्डी दे विच आए है ते उन्हां ने 5-6 मिनट दे विच ही शटर तोड़ के ते साडा गल्ला चुक के लै गए दुकान दे विचों ते उस तकरीबन 5-7 हज़ार रुपये नगद सी ते बाकी साडा शटर का काफ़ी नुकसान करके थाने तो बिल्कुल ही 100 मीटर के दूरी ते असीं बैठे हैं। कोई 100 नंबर ते असीं फोन करते रहे राती भी 4 बजे ते कोई किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिता। कहने सवेरे गल करांगे। प्रशासन बड़ा ख्याल करे इस काम ते बहुत चोरियां बहुत 2 दुकानों के शटर टुट गए रात। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मजीठिया को 11 दिन के पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन पर आय से अधिक संपत्ति और 540 करोड़ रुपयों के ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। विजिलेंस ने कोर्ट से और रिमांड की मांग की थी, लेकिन मजीठिया के वकीलों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में लगातार बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात हैं, तो कुछ जगहों पर भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया। वहीं हिमाचल में बारिश के कारण पोंग डैम में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार पोंग डैम में जलस्तर 1321.90 फीट तक पहुंच गया है। होशियारपुर के पास शाह बैराज नहर में भी जल स्तर बढ़ गया है। इसके कारण शाह बैराज नहर के 2 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। बीते दिन मोगा के कोट इसे खां में डॉक्टर अनिल कंबोज के पास 2 लोग मरीज बनकर आए और उन्होंने डॉक्टर पर गोलियां चला दी, तो वहीं उनका इलाज मोगा के मेडिसिटी अस्पताल में चल रहा है। वहीं आज सुबह पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, धर्मकोट के एमएलए दविंदरजीत सिंह, मोगा एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने डॉक्टर अनिल कंबोज का हालचाल जाना। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने एक्ट्रेस तानिया से भी बातचीत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉक्टर अनिल कंबोज को अभी आईसीयू में रखा गया है और वे वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे उनका हाल जानने यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ के डॉक्टरों को बोला है कि अगर उनके लिए किसी और डॉक्टर से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सलाह मशवरे की ज़रूरत है तो वह सरकार उन्हें प्रोवाइड करवाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा रहा है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। डॉक्टर अनिल कंबोज जी एक बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर है और कोट इसे खां बहुत लंबे समय तो लोगों की सेवा करते हैं और उन्होंने जोड़ा अपने उन्होंने फैमिली मैंबर भी उन्होंने डॉटर ला भी डॉक्टर है और साढ़े कोल काम करती है और समाज के उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। तो वैसे मतलब साड़ी जोड़े पार्टी के नाल भी जुड़े हुए सी बट दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट बट एक एज ए डॉक्टर वो समाज के बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। तो बड़ी मतलब एक बहुत ज़्यादा ट्रैजिक और मंदभागी और अनफॉर्चुनेट जी घटना हुई है कि एक मरीज के गर्भ के जी कि धोखेबाजी है जोड़ा कि इंसानियत तो गिरी हुई गल है कि तुसी डॉक्टर को इलाज कराने आते हो उन्होंने धोखे नाल गोली मार दो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਪ ਮੋਹਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਜਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਵੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ सोच भी ना सके। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में 5 सिंह साहिबानों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सभा का नेतृत्व श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जथेदार और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने किया, जिसमें सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के 3 ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी राजदीप सिंह साहिब ज्ञानी सुल्तान सिंह और सिंह साहिब ज्ञानी केवल सिंह और तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार टेक सिंह ने भाग लिया। बैठक में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से संबंधित गंभीर मामलों पर चर्चा की गई। 5 सिंह साहिबानों ने घोषणा की कि पंथ विरोधी ताकतों के प्रभाव में आकर खालसा पंथ को विभाजित करने या श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता को कमज़ोर करने वाले व्यक्तियों के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तख्त श्री पटना साहिब प्रबंधक कमेटी के सदस्यों हरपाल सिंह जोहल और डॉक्टर गुरमीत सिंह को भी श्री अकाल तख्त साहिब की गरिमा और सम्मान को चुनौती देने वाले मीडिया, सोशल मीडिया बयानों और षड्यंत्रों में शामिल होने के लिए तनख्वाहिया घोषित किया गया है। अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह, महासचिव इंद्रजीत सिंह, सचिव हरमन सिंह और सदस्य गोविंद सिंह लौंगोवाल, राजा सिंह और महेंद्र पाल सिंह को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं तो पंथिक परंपराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उन्होंने समा ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਪੰਥ। ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪੱਖ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਆ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨੇ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टिंडा वाला वेहड़ा गांव बल्ला पठानकोट रोड जालंधर में 15वां वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा छठे दिन में प्रवेश कर गया है, जिसका शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर अपने कर कमलों से किया। श्री विज ने बाबा बर्फानी के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सदस्यों ने बाबा बर्फानी जी के भक्तों में लंगर वितरित करने की सेवा की। तो वहीं लंगर प्रबंधकों ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, नरेश शर्मा, काली, अश्विनी शर्मा धूपवाले, विजय महाजन, अशोक शर्मा, पवन गौतम, रेहान गौतम, राजीव शर्मा, अजय मल्होत्रा, राम कुमार, राकेश गुप्ता, रमेश प्रभाकर, नवल किशोर, सीमा, जोगिंदर पाल भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। हर साल की तरह साडा वार्षिक भंडारा 15वां वार्षिक भंडारा अज 6वें दिन च प्रवेश कर गया है। अज साडे विच साडे वड्डे वीर दैनिक सवेरा संपादक शीतल विज जी प्रभु चरणों दे विच आशीर्वाद लैन आए ने। इन्हां दे आउण नाल साडा बड़ा अहुदा उच्चा हो जाता है कि साडे वड्डे वीर ने, इन्हां दा सानूं बहुत आसरा है। असीं इन्हां दा बड़ा धन्नवाद करते हैं, अपना टाइम कढ के अज पहुंचे ने, जिहड़े अपने रोज़ रिपोर्टर इत्थे भेजते हैं तो देशों विदेशों साड़ियाँ खबरां पहुँचाते हैं। मैं इन्हां दा बहुत तहे दिल तो धन्नवाद करदा। ये साडे देवी तलाब मंदिर के प्रधान भी ने, जिन्हां ने देवी तलाब नूं जिन्नियां संस्थावां ने सारियां नूं एक मणका माला दे विच परो के रखा होया है। इन्हां ते सानूं बड़ा गर्व है। जय श्री भोले, जय श्री अमरनाथ यात्रियों वास्ते जिहड़ा कि भंडारा असीं लगाया है ये 15वें साल च प्रवेश कर गया है। इत्थे साडे वड्डे वीर शीतल विज जी आए ने और सानूं आशीर्वाद देन आए ने ते भोले को आशीर्वाद लैन आए ने। इत्थे इन्हां दा आयां दा बहुत बहुत कोटि कोटि असीं धन्नवाद करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा जो कि पठानकोट रोड से बड़ी धूमधाम नाल चल रहा है और ये लंगर पठानकोट पिंडा वाले वेड़े ते लगाया गया है, जिस विच यात्री बहुत शरधा नाल आ रहे हैं, भोले का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। असी सारे यात्रियों को गुजारिश करते हैं, जलंधर च साडा लंगर पठानकोट रोड पिंडा वाले वेड़े लगा है। जदों भी तुसीं आओ अमरनाथ यात्रा भंडारा ते साडे लंगर ग्रहण जरूर करके जाओ, साडे भंडारे ते जरूर होके जाओ। असी श्री शीतल विज जी का बहुत धन्नवाद करते हैं जो कि सानूं बहुत साथ दे रहे हैं, साडियां खबरां देशां विदेशां विच पहुंचा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, जिस ਨਾਲ देख के यात्री साडे लंगर ते रोके जाते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। सनातन धर्म गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विजय खुल्लर ने की। बैठक की शुरुआत मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सोमनाथ पाठक ने मंत्रोच्चारण से की। इस अवसर पर अध्यक्ष विजय खुल्लर ने बताया कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त दिन शनिवार को वृंदावन धाम की तर्ज पर मनाई जाएगी। तो वहीं आयोजन को भव्य रूप देने हेतु इस बार पिछले वर्ष से अधिक बजट का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त की सुबह मंदिर प्रांगण से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो कि मॉडल टाउन के विभिन्न हिस्सों से होते हुए वापस मंदिर परिसर में पहुंचेगी। इसके साथ ही 15 अगस्त को शहीद रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीतों और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस बैठक में मंदिर कमेटी के अनेक सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष विजय खुल्लर, उपाध्यक्ष ML चोडा, गीता मंदिर डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली, रणबीर जगोता, कैशियर मदन लाल अग्रवाल, बांकेलाल पुरी, सुरेंद्र खुल्लर, वरिंदर खुल्लर,
संधीर खुल्लर, नरेश गुप्ता, एडवोकेट संदीप कालिया, MK जैन, सुभाष कोहली, श्याम सुंदर, लखबीर सिंह, लाली घुमन, हरीश धवन, प्रोफेसर SK मल्होत्रा सहित अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने जन्माष्टमी कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री किशन ਅੱਜ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਖੁੱਲਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਪਾਠਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਠਾਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛਬੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਹੈ ਸਿੱਕਾ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਤਸਵ ਆ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਗੀਤਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ 16 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਤਿਉਹਾਰ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਥੁਰਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਔਰ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। कोट इससे खां मोगा में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा पंजाब के संरक्षक डॉक्टर अनिलजीत कंबोज पर हुई फायरिंग की घटना के विरोध में नीमा से जुड़े डॉक्टरों ने पूरे पंजाब में रोष व्यक्त किया। जालंधर में नीमा इकाई के डॉक्टरों ने अपने अपने क्लिनिक और अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर ओपीडी सेवाएं दी और इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया। नीमा जालंधर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर SP डालिया ने कहा कि डॉक्टर कंबोज पर किया गया जानलेवा हमला अत्यंत निंदनीय और चौंकाने वाला है। ये न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है बल्कि चिकित्सा जगत की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इसे अमानवीय घटना करार देते हुए कहा कि इस
मामले में कानून व्यवस्था की विफलता भी उजागर हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सज़ा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। इसके लिए चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर एस पी डालिया, प्रेजिडेंट नीमा जलंधर। लास्ट दिन ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲਾ ਰਿਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਨੀਮ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि श्री पटना साहिब तख्त के 5 प्यारे साहिबानों ने पिछले दिनों कुछ घोषणाएं की जो मर्यादाओं और परंपराओं से हटकर हैं, जिनमें जत्थेदारों को तनख्वाहियाँ घोषित करने और अकाल तख्त साहिब के आदेशों को ना मानने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। इस फैसले के बाद जब राजनीतिक नेता सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाहियाँ घोषित किया गया तो अकाल तख्त साहिब द्वारा चलाई जा रही इस सिलसिले को रोकने के लिए जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज साहिब की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें गुरबचन सिंह सहायक ग्रंथी और अन्य सदस्यों को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस निर्णय का भी तहे दिल से सम्मान करते हैं। तो वहीं SGPC अध्यक्ष एडवोकेट धामी साहिब ने भी पूरा विश्वास व्यक्त किया कि ये सही समय पर सही निर्णय है। उनके अलावा कुछ राजनीतिक दल जैसे सिमरजीत सिंह मान, बुद्धिजीवी वार्ड, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल और भी बड़े स्तर पर संगत ने भी श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले का सम्मान स्वीकार किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनी पटना साहिब तख्त के 5 प्यारे साहिबान वालों मर्यादा ते परंपरावां तो हट के कुछ ऐलान किए गए, जिन्हां विच जथेदार साहिबान नूं तनख्वाहियां ते अकाल तख्त साहिब के हुक्मां दी जिहड़ी है वो अदूली, अकाल तख्त साहिब के आए हुक्मां नूं ना प्रवान करना ते इस दे मामले दे विच पटना साहब की जिहड़ी कमेटी वालों इसकी तायद करनी। इन्हां घटनावां ने सिख पंथ के अंदर बहुत बड़ा एक मन ते बोझ दिता। सो ये फैसले तो बाद जदों कल एक राजनीतिक आगू सुखबीर सिंह बादल नूं तनख्वाहियां करार घोषित करन तो बाद श्री अकाल तख्त साहब वालों ये जिहड़ी चलाई जा रही लड़ी उस नूं रोकण दे लई जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज साहिब दे प्रधानगी च जिहड़ी 5 प्यारे साहिबान की मीटिंग हुई, उस दे विच गुरबचन सिंह जी जो कि सहायक ग्रंथी आ उन्हां नूं तनख्वाहियां ते जिहड़ी कमेटी आ वो कमेटी दे जौहर ते डॉक्टर नाम दे एक मैंबर नूं तनख्वाहियां दे के बाकी समूची कमेटी नूं 15 दिनां च अकाल तख्त साहिब विखे पेश होण दी जिहड़ा फैसला आया उस फैसले का तहे दिल तो असीं सत्कार करते हैं। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जालंधर के लाजपत नगर निवासी राघव अरोड़ा और आंचल अरोड़ा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्म आचार्य हंसराज शास्त्री ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने भक्ति में भजनों से उपस्थित
भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आई हुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, क्रांतिकारी वैदिक प्रवक्ता अश्विनी डोगरा, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, अनिल भसीन, कंचन भसीन, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, हजारीलाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, बैजनाथ, वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन स्वदेश भगत की रिपोर्ट। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरवारिष्ठैः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रमे स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादितेभ्यः नमः। स्वीकृत आपके देखिए, स्वीकृत आरती के निष्ठान होगा, स्वीकृत आरती ले लेंगे। हमारे जीवन में मिठास हो, मधुरास हो, सुख शांति समृद्धि हो, इस भावना के साथ यदि में कुछ अधिकता निंदा हो गई तो ईश्वर क्षमा कर इस भावना के साथ यह स्वीकृत आरती मात्रा कम रखेंगे और सभी लेंगे। जालंधर के कोट किशनचंद स्थित अंतिम स्थान स्वर्ग आश्रम में आधुनिक एलपीजी आधारित क्रीमेशन मशीन की शुरुआत कर दी गई है। इस सुविधा के शुरू होने से शहर वासियों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब परंपरागत लकड़ी के बजाय पर्यावरण अनुकूल और समय की बचत करने वाली तकनीक से अंतिम संस्कार संभव हो सकेगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के मुख्य तरसेम कपूर ने बताया कि इस मशीन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सस्ती, सुलभ और स्वच्छ अंतिम संस्कार सेवा प्रदान करना है। शुरुआत में 1 वर्ष तक ये सेवा निःशुल्क दी जाएगी ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके। मशीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इसमें एक बार भी एक ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और प्रक्रिया मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं होगा, जिससे पेड़ों की कटाई भी रुकेगी और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये कदम समाज के लिए प्रेरणादायक है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LPG ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਵੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ LPG ਕਰਵੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, LPG ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ LPG ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਰਜਸ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਰੱਖੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, 9 ਮਣ ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ 2 ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੌਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵੇਸ਼ਨ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵੇਸ਼ਨ 50 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲੋਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵੈਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਟਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ? ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ 3600 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਲਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2500-2600 ਲਾ ਲਓ। ठीक है। बस मैक्सिमम है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। लुधियाना में पुरानी रंजिश के चलते नेपाल के व्यक्ति को 2 दर्जन के करीब युवकों ने घेरा, तेजधार हथियारों से वार कर बेरहमी से की हत्या। हरियाणा के सिरसा में मामूली कहा सुनी से शुरू हुआ विवाद बना हत्या की वजह, भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। जीरा में बेखौफ चोरों ने रात में 2 किराना दुकानों को बनाया निशाना, गले में रखी नकदी लेकर हुए रफू चक्कर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।